Hello everyone. Last class में we have seen the basic trigonometric ratios, their definitions, and the three identities that we derive from Pythagoras theorem. And then we have seen some other identities that are derived from Pythagoras theorem. So, keeping those in mind, let's start angles. Let's understand how trigonometric angles work. So, this is a right angle triangle ABC, right angled at B. Okay, and let's call this angle C as theta. So from properties of triangle, since the sum needs to be 180-degree, this angle automatically becomes angle 90 minus theta, right? Because the sum needs to be 180. So now angle A and angle C, since their sum is 90-degree, if you add them, 90 plus 90 minus theta, sorry, 90 minus theta plus theta. So this is cancelled. We get 90. So sum of angle A and C is 90 degrees. So angle A and C are called complementary angles, right? So now let's try to write sine theta. What is sine theta? So if we try to write sine theta, we get perpendicular upon hypotenuse. So this is the perpendicular and this is the hypotenuse for theta. So sine theta is x upon z, correct? Similarly, if you write cos theta, that is base upon hypotenuse. So this is the base and this is the hypotenuse. So cos theta is y upon z, right? Now let's move to angle A. That is the value of angle A is 90 minus theta. And let's try to write the ratio for sine 90 minus theta. So if you write sine 90 minus theta, sine is what? Perpendicular upon hypotenuse. So for this angle, that is 90 minus theta, this is the perpendicular, right? And this is the hypotenuse. So sine 90 minus theta is y upon z, right? And cos 90 minus theta is x upon z. Similarly, see, this is 90 minus theta, this is the base and this is the hypotenuse. So if you write cos, you write base upon hypotenuse, that is x upon z. So it is clear from here that sine 90 minus theta and cos theta both are y upon z, that is both are equal. Similarly, cos 90 minus theta and sine theta both are x upon z and both are equal. So just like we have complementary angles, we have complementary t ratios. So from this example, we understand that sine and cos are complementary, which means sine 90 minus theta is nothing but cos theta, and cos 90 minus theta is nothing but sine theta, right? So sine and cos are complementary. Similarly, tan and cot are complementary, and cos and sec are complementary. Okay, so we know the complementary relation sine and cos, we know the complementary relation of tan and cot. By the way, tan and cot are complementary as well as reciprocals. Okay, ध्यान रखना ये बात. And cosec and sec are complementary, right? And also by definition, see, sin theta का definition होता है p by h, right? Cos theta का definition होता है b by h. So if you divide p by h by b by h, you will get p by b, and that is nothing but definition of tan theta. So हमें ये पता होना चाहिए that sin theta by cos theta is tan theta, right? So अब हमें सभी टी रेशियोज का डेफिनेशन पता है,
कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है पता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है ये पता है, कौन किसका रेसिप्रोकल है ये पता है, और हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज पता है जो पाइथागोरस थ्योरम से आती है, राइट। अब हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या होता है। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए आपको टी रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। साइन 0 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, शायद, हाँ √3/2, और साइन 90 होता है 1। ठीक है, माइंड यू साइन, आप यहाँ से भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो जैसे जैसे एंगल्स बढ़ रहे हैं 0 से 90 की तरफ, ठीक है, साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, साइन की वैल्यू बढ़ रही है। तो 0 से 90 के बीच में साइन जो है वो एक इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग रेशियो है, ठीक है, इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीज करता है साइन का। अभी कॉस में आओ, देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बट जस्ट टू एग्जिबिट द फैक्ट दैट साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो अगर आपको कॉस 0 लिखना है, ठीक है, तो कॉस 0 क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो कॉस 0 वही होगा जो साइन 90 माइनस 0 होगा, और साइन 90 माइनस 0 क्या होता है, साइन 90 यानी कि 1। सिमिलरली कॉस 30 क्या होगा, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 30 होगा साइन 90 माइनस 30, दैट इज साइन 60, दैट इज √3/2। ठीक है, इतना हमें करना नहीं होता है, पता होना चाहिए, दिस इज जस्ट टू exhibit the fact that sin and cos are complementary. Okay, so cos is 1/√2, this is 1/2, sorry this is 1/2, and this is 0, और साइन अपॉन कॉस करोगे तो tan मिल जाएगा, ठीक है, तो tan 0 0 होता है, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3, और tan 90 is not defined, ठीक है, बिकॉज 0 का फॉर्म आता है डिनोमिनेटर में, वो नॉट डिफाइंड है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सो ये है तीन बेसिक टी रेशियोज के लिए जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उन पे ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, करेक्ट। ठीक है, तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए ताकि आप इनके वैल्यूज को डायरेक्टली क्वेश्चंस में पुट कर सको। अभी हम बाद में देखेंगे, वैल्यू पुटिंग सीखेंगे, जिसमें इनका बहुत अच्छा खासा यूज होगा और इससे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, सो एक बार फिर से रिकैप कर लो। हमें डेफिनेशंस पता चल गया, हमें कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है पता चल गया, हमें कौन किसका रेसिप्रोकल है ये बाय डेफिनेशन पता है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये बाय डेफिनेशन है, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। फिर ये बेसिक एंगल्स के लिए वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 0 से 90 के बीच में साइन जो है वो इंक्रीज करता है, कॉस जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अभी इतना देखने के बाद अगर हम इतना समझ गए तो देखो ये जितने भी वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये एक्यूट एंगल्स के लिए। एक्यूट एंगल मतलब एंगल whose measure is
लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल और 90 डिग्री, 90 डिग्री भी एक स्टैंडर्ड एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल्स और 90 डिग्री के लिए है। अब हम देखेंगे हम कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं अगर हमें एक बड़ा एंगल दे दिया गया, ठीक है। लेट्स से 120 डिग्री, 150 डिग्री कुछ भी दे दिया गया, तो उसको, उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ये समझना है। ये समझने से पहले हम क्वाड्रेंट सिस्टम समझेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ क्वाड्रेंट। देखो, इसको बोल, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, एक्स एक्सिस, ठीक है, 0 डिग्री। जीरो से, देखो यहाँ से यहाँ 0 से 90 डिग्री होता है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर 90 से 180 डिग्री तक, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर 270 डिग्री तक, दिस इज कॉल्ड द थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर एक पूरा राउंड दैट इज 360 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमने पूरे 360 डिग्रीज के सर्कल को चार क्वाड्रेंट्स 90 डिग्री ईच में बांट दिया। हमने इसको बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप एक बार समझने के लिए समझ लो, बट यू शुड रिमेम्बर किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है। देखो, लेट्स से हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट। हमने ये एक ट्रायंगल बनाया, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो इसके हाइपोटेनस की वैल्यू, देखो हाइपोटेनस जो है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। दिस इज थीटा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी के लिए इसका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखो 0 से ऊपर पॉजिटिव है, देखो दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड, अगेन दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड। अभी के लिए इसका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, और अभी के लिए इसका बेस भी पॉजिटिव है, ठीक है। विच मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होता है। क्योंकि टी रेशियोज होता क्या है, किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो, अगर तीनों ही साइड पॉजिटिव है तो किसी का भी रेशियो लोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहें, दिस इज द ट्रायंगल, इसको उठा के हमने सेकंड क्वाड्रेंट में रख दिया, ठीक है। इसको उठा के हमने सेकंड क्वाड्रेंट में रख दिया। देखो, तो अब तुम जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, हाइपोटेनस तो पॉजिटिव हो जाए, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट आपका जो बेस है, ठीक है, वो नेगेटिव साइड में आ जाएगा। देखो, ये 0 से लेफ्ट साइड में, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे सभी टीरो से पॉजिटिव होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे होता है tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, करेक्ट। तो अब ये पूरा जितना भी हमने डिस्कस किया,
उसको सम अप करने के लिए वी हैव अ, मतलब निमोनिक बोल सकते हैं, दिस इज द क्वाड्रेंट। तो ASTC, इसको कैसे भी याद कर लो, मतलब वी यूज टू रिमेम्बर ऐसे ऑल सिल्वर टेनिस कप, या तो ऐसे याद कर लो, विच इज यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है। एक और तरीका है, देखो, अगर आप देखोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव है ही भाई, इस क्वाड्रेंट में तो साइन हमेशा पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव होता है यहाँ और यहाँ। करेक्ट। ठीक है। अगर आपसे पूछा कि कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो सभी पॉजिटिव है। ठीक है। और कॉस यहाँ भी पॉजिटिव है। करेक्ट। तो कॉस पॉजिटिव होता है यहाँ और यहाँ। और अगर आपसे पूछा टैन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो सभी पॉजिटिव है और यहाँ टैन पॉजिटिव है, तो टैन पॉजिटिव होता है यहाँ और यहाँ। तो या तो आप ऑल सिल्वर टेनिस कप से याद कर लो, या फिर इससे विजिबली याद कर लो कि साइन जो है वो हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव होता है, कॉस जो है वो वर्टिकली पॉजिटिव होता है, और टैन जो है वो डायगोनली पॉजिटिव होता है। इस पूरे का पर्पस ये है कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए कौन सा टी रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बेसिकली आप उसका साइन बता पाओ, ताकि आप कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, उसका आप वैल्यू निकाल पाओ, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको आप सिंप्लीफाई कर पाओ। ठीक है। अभी हम वही देखने वाले हैं। तो कुछ एंगल्स लेते हैं, जैसे कि 120 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है। 3 एंगल्स लेते हैं और फिगर आउट करते हैं कि इनका टी रेशियोस कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमें करना होता है, हमें हमेशा इस फॉर्म में लिखना होता है, 90 × n प्लस माइनस थीटा। ठीक है। हमेशा इस फॉर्म में हमें लिखना होता है। ठीक है। किसी भी एंगल को, जहां पे ये थीटा क्या है, ये थीटा हमेशा एक्यूट होगा, मतलब 90 से कम। ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो 120 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 × 1। ठीक है। 90 हो गया प्लस 30। ठीक है। यही तो होता है 120। अगर हम 150 लिखना चाहें तो हम 90 × 1 प्लस 60 लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर देर इज अनदर वे, आप 90 × 2 यानी कि 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो। ठीक है। अभी इस दोनों का इम्पोर्टेंस हम देखने वाले हैं, ये दोनों ही कैसे काम करता है, और बाद में आई पर्सनली प्रेफर कि सिर्फ प्लस वाला यूज किया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, बट माइनस वाला यूज करना भी आना चाहिए। राइट। सिमिलरली अगर 270 पे आओ, ओके, दिस इज जस्ट 90 × 3, इसको 210 कर दो। ठीक है। तो या तो आप इसको 90 × 2 180 प्लस 30 लिख दो। ठीक है। और 90 × 3 माइनस 60 लिख दो। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें आना चाहिए, किसी भी बड़े एंगल को, कितना भी बड़ा एंगल हो, 90 × n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख पाए, 90 × n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख पाए, जहाँ थीटा एक अक्यूट एंगल हो। इससे हम उस
एंगल का टी रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक है, सो अब हम किसी भी बड़े एंगल को 90 इंटू एन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना जानते हैं, राइट। तो अब किसी भी बड़े एंगल का टी रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए वी नीड टू डिटरमाइन टू थिंग्स। फर्स्टली उसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा और सेकंड उसका साइन क्या होगा। सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे लेट्स से आपसे पूछ दिया गया साइन 120 डिग्री, राइट, साइन 120 डिग्री। तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। एक तो इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा, और इसका साइन क्या होगा। ठीक है, ये निकालने के लिए आप यूज करोगे 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा वाला, और ये निकालने के लिए आप यूज करोगे क्वाड्रेंट्स में। कौन से क्वाड्रेंट में किस रेशियो का साइन क्या होता है, अभी आपको पता है किस में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट साइन 120 डिग्री, और इससे हम सीखते हैं कैसे निकाला जाता है बड़े एंगल्स के लिए साइन 120 डिग्री अगर निकालना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख दो साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, करेक्ट, ये लिख दिया। अभी यहाँ पे सीखने वाली बात है, ये जो है ना n 90 इंटू एन यानी कि 90 इंटू 1, ये अगर ऑड हुआ, ठीक है, ये अगर ऑड हुआ तो क्या होगा, टी रेशियो चेंज हो जाएगा। टी रेशियो जो चेंज होके कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, करेक्ट। और ये अगर इवन हुआ तो नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा अगर एन इवन हुआ तो, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, ऑड है, करेक्ट, 90 इंटू 1 है, तो टी रेशियो चेंज होगा। चेंज होगा क्या बनेगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री। टी रेशियो एक्चुअली में है क्या, साइन, ठीक है, तो चेंज होगा क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ इतना बताना था कि कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा या नहीं होगा, इसने बता दिया। ये 30 एज इट इज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपने मैथमेटिकल वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, इसके आगे प्लस होगा या माइनस, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा आपका जो ओरिजिनल एंगल है वो अपने पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होल्ड करता है। आपका ओरिजिनल एंगल क्या है, 120 डिग्री। ठीक है, आपसे साइन 120 पूछ रखा है। साइन 120 लाइज इन, सॉरी 120 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, करेक्ट। तो साइन 120 डिग्री इज नथिंग बट प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक √3/2, करेक्ट। तो साइन 120 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अभी सिमिलरली लेट्स से आपसे कॉस 150 डिग्री पूछ लिया, ठीक है, कॉस 150 डिग्री पूछ लिया। ठीक है, तो पहले तो इसको 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा का फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। एक बार लिख लो 90 इंटू 1 प्लस 60, करेक्ट। एक और तरीका है लिखने का, वो भी लिख लो ताकि समझ जाओगे। 90 इंटू 2 यानी 180 माइनस 30 लिख लिया। ठीक है, अभी 1 जो है ना ये ऑड है, विच मीन्स अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमें चेंज करना पड़ेगा टी रेशियो। ठीक है, तो क्या पूछा है, कॉस पूछा है,
कॉस। अगर 90 इंटू 1 लिखा हमने तो चेंज करना पड़ेगा, कॉस का क्या करना पड़ेगा, साइन। ठीक है, कॉस का साइन। ठीक है, 60 60। अभी लेट्स सी 150 डिग्री कहाँ लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, वहां कॉस क्या होता है, कॉस वहां नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस 150 है, कॉस 150 जो है इस रास्ते से माइनस साइन 60 आ रहा है। ठीक है, इधर से निकालो, 90 इंटू 2 हो गया यहाँ पे, विच मीन्स द टी रेशियो वोंट चेंज क्योंकि एन इवन है। ठीक है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा और 30 का 30 ही रहेगा। ठीक है, अभी यू हैव टू फिगर आउट कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक, तो 90 इंटू टू यानी कि 180, 180 मतलब 90 इंटू टू 180 यहाँ पहुंचा और इसमें से कुछ घटाया, -30 किया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, वैसे भी अभी तो यहाँ पे विजिबल है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, बट जैसे जैसे बड़ा नंबर आएगा ना तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा ऐसे, 90 इंटू टू उसमें से कुछ घटाया यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस साइन 60 या माइनस कॉस 30 दोनों ही कितना होता है, -√3/2। ठीक है, तो कॉस 150 की वैल्यू -√3/2। ठीक है, tan 210 निकालो एक बार, tan 210 निकालते हैं, tan 210 डिग्री। ठीक है, tan 210 अगर निकालना है तो एक बार क्या लिख लें, 90 इंटू टू 180 प्लस 30 लिख लें, और एक बार लिख लेते हैं 90 इंटू 3। आपको दोनों नहीं लिखना है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ ये एग्जाम्पल के लिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हो कोई भी एक लिखो, क्योंकि दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। मैं बस दिखा रहा हूँ कि आप दोनों भी लिख सकते हो, दोनों ही काम करता है। ठीक है, 90 इंटू 3 दैट इज 270 -60 डिग्री। ठीक है, अभी इस हिसाब से ये इवन है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो tan का tan रहेगा और 210 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो प्लस साइन रहेगा 30। ठीक है, 30 यहाँ पे, तो प्लस tan 30 और यहाँ से क्या आएगा एक बार देखो, ये क्या हो गया, ऑड हो गया, तो tan का वी विल हैव टू राइट tan का कॉम्प्लीमेंट दैट इज cot। ठीक है, cot 60 डिग्री और प्लस क्यू, क्योंकि 210 तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो या तो tan 30 या तो cot 60, दोनों ही कितना होता है, 1/√3। ठीक है, विच मीन्स कि आपका ये जो है tan 2 1 डिग्री दैट इज नथिंग बट 1/√3। ठीक है, तो अब हमें बड़े एंगल्स को छोटे एंगल्स में तोड़ना पता है, फिर उनका वैल्यूज निकालना पता है। हमें पता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, और 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा लिख के डिपेंडिंग ऑन एन, अगर एन इवन हुआ, अगर एन इवन हुआ तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, अगर एन ऑड हुआ तो टी रेशियो चेंज होगा, और चेंज हो क्या बनेगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा चेंज होके, इतना पता है हमें। अब हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक वैल्यू पुटिंग, जो कि ऑप्शंस एलिमिनेट करने में या फिर ऑप्शंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू पुटिंग का कुछ बेसिक्स। लेट्स सी,
वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आपको सिर्फ मैथमेटिकली एक चीज ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बने, ठीक है? ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। वैल्यू पुटिंग करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए मैथमेटिकली। मैथमेटिकली बस इतना इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम जीरो, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो we always put values such that denominator does not become zero. And there is one more thing we keep in mind: whenever the whenever the options are not in terms of numbers, rather they are in terms of trigonometric identities. Let's say we have two options. We have a let's say we have a question, right? And we have options जिसमें से एक एक आंसर है tan थीटा और एक आंसर है cot थीटा, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमने थीटा इक्वल टू 45 पुट किया, ठीक है, तो ये दोनों ही 1 आ जाएगा, ठीक है? तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, बट इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा वी कैन नॉट से श्योरली, ठीक है? तो वैल्यू पुटिंग करते समय सिर्फ इतनी ही बातें ध्यान में रखनी होती है। और वैल्यू पुटिंग हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम बेटर सीख पाएंगे। अभी सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें ऐसा वैल्यूज पुट करना है जिससे डिनोमिनेटर जीरो ना हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं, करेक्ट? वैल्यू पुटिंग अब करना कैसे है, उसमें भी कुछ कुछ गाइडलाइंस तो नहीं बोलेंगे, मतलब लेट्स से मतलब हमें कौन सा टी रेशियो में क्या वैल्यू पुट करना है, ठीक है? तो लेट्स से हमें साइन मिला, कॉस मिला, ठीक है, tan मिला, कॉट मिला, ठीक है? साइन कॉस tan कॉट सेक और कोसेक, यही दिखता है हमें, ठीक है? तो देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं जो अभी बताने वाला हूँ दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, दिस इज जस्ट अ स्मार्ट वे ऑफ eliminating the options and reaching the closest to the result. तो अभी जो बता रहा हूँ बस ध्यान में रख लो, कहीं नोट कर लो, when we'll apply these in questions you will get a better clarity about it. So जहां पे भी आपको साइन मिलता है, करेक्ट, जहां पे भी आपको साइन मिलता है, ठीक है, वहां पे यू कैन पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, क्योंकि साइन 90 1 होता है और साइन 0 0, ठीक है? सिमिलरली आपको कॉस में भी कर सकते हो, जहां पे साइन और कॉस मिले वहां पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 0 डिग्री पुट करना इज अ गुड ऑप्शन अनटिल अनलेस उससे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा हो, ठीक है? सिमिलरली जहां पे आपको tan और cot मिले वहां पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, एक और बढ़िया है, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान से एक बार समझ लेंगे ये क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी नोट कर लो, जहां पे tan और cot मिले वहां थीटा इक्वल टू 45 और 135 पुट करना इज जनरली a गुड आइडिया, राइट? tan और cot में जनरली 45 हम क्यों पुट करते हैं, क्योंकि tan और cot में 45 पे वैल्यूज बराबर होती हैं, दैट इज 1/√2 होती है, करेक्ट? tan और cot में 45 पे 1/√2 होता है, तो जहां पे भी ऐड या मल्टीप्लाई हो रहा हो यहाँ पे वो हमारे लिए सिंपल बन जाता है। बट कहीं अगर डिनोमिनेटर में
tan माइनस कॉट मिले, कॉट माइनस tan मिले, तो वहां पे 45 पुट करना सही नहीं होता है। वहां पे वी यूज दिस 135 डिग्री, अभी हम लोग देखने वाले हैं बाद में। ठीक है, अगर आपको सेक और कॉसेक में कुछ पुट करना है तो इट इज अ गुड आइडिया टू पुट 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पुट करना भी सेक और कॉसेक के लिए अच्छा आइडिया है। और सेक में थीटा इक्वल टू 60 पुट करना भी अच्छा आइडिया है। ठीक है, और कोसेक में थीटा इक्वल टू 30 पुट करना। क्यों? बिकॉज कोसेक इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन 30 का रेसिप्रोकल कोसेक 30, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। ठीक है, ये 2 होता है। और सिमिलरली सेक इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस 60 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। तो ये दोनों होल नंबर्स मिलते हैं आपको। ठीक है, जब आप सेक में, सॉरी, जब आप सेक में 60 पुट करोगे और कोसेक में 30 पुट करोगे तो यू विल गेट होल नंबर्स। ठीक है, और 45 इज ऑलवेज इजी टू पुट। ये हो गया सेक और कोसेक का बात, करेक्ट। तो अगर साइन कॉस मिले तो 090 पुट कर देंगे, टैन कॉट मिले तो 45 135 पुट कर देंगे, सेक कोसेक मिले तो 60 30 रेस्पेक्टिवली और 45 दोनों में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जहां पे ये सब कुछ काम नहीं करता है वहां पे ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, सबसे सिंपलेस्ट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5 वाला, ये थीटा, ये 3 4 5। ठीक है, तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान लो, इसमें से एक 37 डिग्री, एक 53 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वाला 37 होता है क्योंकि ये छोटा के सामने है, ये 37 होता है, दूसरा वाला 53 होता है। ठीक है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा आएगा 3/5, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा 4/5, और टैन थीटा आएगा 3/4। ठीक है, आप ये तीनों भी पुट कर सकते हो उन क्वेश्चंस में जहां पे ऊपर वाले पुटिंग से काम नहीं बन रही है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है बट जहां पे स्टैंडर्ड एंगल्स पुट करने से नहीं बनेगा वहां पे ये पुट करने से ऑलमोस्ट श्योर शॉट 99% क्वेश्चंस बन जाता है, करेक्ट। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे ऊपर में मार्क किया था, उसको हमें देखना है, डेट इज 135 डिग्री। ठीक है, ये देखो 135 डिग्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हम लोग क्यों पुट करते हैं इसको 135 डिग्री। अभी हमने बड़ा एंगल्स को तोड़ना सीखा है ना, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 135 डिग्री के लिए एक बार साइन कॉस और टैन निकालो। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट साइन कॉस एंड टैन फॉर 135 डिग्री। तो एक निकाल के देखते हैं। ठीक है, साइन अगर 135 निकालना है हमें, सॉरी, साइन 135 निकालना है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख दें, साइन 90 × 1 प्लस 45। ठीक है, 90 × 1 है तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 45। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, करेक्ट, तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि 1/√2। अगर कॉस निकालने जाओगे, ठीक है, कॉस 135, तो सेम 90 × 1 प्लस 45 हो गया। ठीक है, और कॉस का चेंज हो जाएगा, कॉस का चेंज हो क्या बनेगा, साइन 45, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है ना वो नेगेटिव होता है, करेक्ट, माइनस साइन 45 तो -1/√2। ठीक है, देखो यहाँ पे फायदा यही होता है, अगर अगर हमें 45 पुट करना होता साइन और कॉस में, ठीक है,
तो तो साइन और कॉस में 45 इक्वल हो जाता है, करेक्ट। ये माइनस होगा, -1/√2। साइन और कॉस में 45 इक्वल हो जाता है। तो जहाँ पे साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन लिखा है ना, वहां पे हम 45 नहीं पुट कर पाते। बट अगर हम 135 पुट करेंगे तो वी नो ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो जहाँ पे माइनस लिखा है वहां पे 135 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 135 इंपॉर्टेंट एंगल है, इसके लिए सारा टी रेशियोज एक बार याद होना चाहिए, करेक्ट। तो देख लेते हैं एक बार। 135 डिग्री है ना, इसमें साइन होता है, साइन कितना होता है 1/√2। इसमें कॉस होता है -1/√2, ठीक है। इसमें tan होता है -1, और इसमें कॉट होता है -1, ठीक है। इसमें सेक होता है -√2, और कोसेक होता है √2। 135 डिग्री अगर आपको पता होगा, या अगर आपको याद होगा, तो आप डायरेक्टली इसको वैल्यू पुटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम एज ऑफ नाउ बेसिक टी रेशियोज जानते हैं, ठीक है। बेसिक टी रेशियोज जानते हैं, उनसे निकलने वाले टी रेशियो जानते हैं। उसके बाद हमें डेफिनेशंस पता है, कॉम्प्लीमेंट्रीज पता है, रेसिप्रोकल्स पता है, स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए एंगल्स की वैल्यूज पता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये पता है। हम बड़े एंगल्स को तोड़ना जानते हैं, बड़े एंगल्स का टी रेशियो निकालना जानते हैं, और बेसिक वैल्यूज पुटिंग का कुछ टेक्निक्स जानते हैं, ठीक है। इतना जानने के बाद हम ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में एसएससी एग्जाम्स पूछा जाता है वो हम कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना करने के बाद हमें एक राउंड क्वेश्चंस का कर लेना चाहिए, ताकि वी गेट अ बेटर क्लैरिटी कि हमने क्या क्या सीख लिया और क्या क्या सीखना बाकी है, करेक्ट। सो वील हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए